It's live. Namaste, Navnath, Rajendra, Abhay. Namaste, everybody. Oh my God. So many. Neela, Nitin, Naresh, Nitin, Mansi. मैं जानबूझ के नाम और पढ़े पढ़े जा रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू टेल यू दिस इज अ लाइव वन. आपने सोचो कि रिकॉर्डिंग आज भी रिकॉर्डिंग कर दिया. संतोष, ज्योति, लवली टू सी ऑल ऑफ यू. मनीषा, सुप्रिया और काफी सारे नाम जो चले गए. श्वेता, वंडरफुल. गणेश, Chandramohan. Great. Lovely to see all of you this very morning. Today was one of those meditation times when I didn't want to open my eyes. I just wanted to be there for as long as I can. Hi ji, kaise ho aap log? And all those who have just joined in YouTube, namaste and welcome to Happy Minds number 1173. 1173 Happy Minds hai. So the journey has been continuing and thank you so much. Aap sabka बहुत बहुत धन्यवाद to make this happen, this journey every week. And here we are with the 1173, this 1173rd Happy Minds. Namaste, Koja. Today's meditation was fantastic. Oh, thank you. Thank you, Beta. God bless. Yes, I feel that this is something which all of us should not miss at whatever maybe the situation. Log in at 7. Don't miss out on this. Isi bahane, at least once a week you will sit in on the seat of meditation, and maybe there's some guidance there which can make you find your way in meditation. So a lot of questions are there on meditation. How should we do it? Don't worry about how we should do it. Find a way which gives you a start, and then once you start, you're there. You find your own way, and as you go deeper, deeper, deeper into it, you will find so many ways to connect with actually how we can do meditation in a better way. Anji, Shelly, those who have joined in for the first time, you can just log in and say, you can type in and say, this is the first, maybe you can write first and the city you're from. So I'll come to know if you're logging in for the first time. And I'll also come to know aap kaun se share se hai. So you can just type in and leave that for me or maybe for everyone to read. So I'll come to know. So, so what is Happy Minds all about? Happy Minds is, a kind of a satsang which we do every week. And here we are for this week's satsang. It's kind of a weekly shot where we get some dose, we get some clarity, we get some input on some aspects of making our lives better. And last few weeks have been on this very simple concept of that we are human beings, not because we were born as human beings. We are human beings because we live a life like human beings. तो हम इंसान हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि हम पैदा इंसानों के रूप में हुए, हम इंसान है बिकॉज हम जीते इंसानों की तरह हैं. तो लास्ट फ्यू एचएस में हमने बात करी कि इंसान जीता कैसे है, क्या उसकी कुछ बेसिक्स हैं जो जो बताती हैं कि ये इंसान है, क्या वो फितरतें हैं जो बताती हैं yeah, this guy is a human being. And we had some beautiful sharings last few Happy Minds in terms of what I shared. And so just want to share with you. Hello, human beings. Kaise ho bhai tum log? Ah, tell me, how are you this very morning? So we have Shai, who's joining from Pune. Good. Welcome, welcome, Shai. So my question to all of you is, human beings, kaise ho tum log? टन टनाटन. अरे बाप रे, ये नासिक से होगा. टन टनाटन. खूब भारी. अंजलि सेज खूबच भारी. ठीक है. हाँ, और बताओ. How are you this very morning? Let me read out how you feel this very morning. Smiling always, sir. अरे शाबाश. जबरदस्त. Enthusiastic. Hmm. Peaceful. जिंदा हूँ. अरे शाबाश. जिंदा भी होते हैं लोग. ठीक है. Early morning. Absolutely charged. That's nice. ये लंबा सा किसने भेजा है? धनंजय, good morning Manish sir, I'm attending this session from South Korea. Oh my God, my brother-in-law Ganesh Sakare shared me the. Are so nice of you to have joined in. I think it must be daytime there. Hmm? Great, welcome Dhananjay from Korea, from South Korea, I should say South Korea. North Korea में तो बहुत कुछ चालू है. चलो, welcome Dhananjay. Anjali, hopeful, एकदम Chan, ay shabash. That's nice. Fantabulous.
Jackass, kadak. Sushil says early morning, kadak, badhiya, great. Chintu. So nice. And last Happy Minds, it was a recorded Happy Minds, and I had to leave for Indore, and there was no way I could do a live Happy Minds for you. So फिर मेरे को लगा कि क्या करना चाहिए? Should I say cancel कर दूं? Should I say कि टाइमिंग चेंज कर दूं? फिर मैं कहा नहीं, टाइमिंग चेंज नहीं करते, कैंसिल भी नहीं करते. सो अ डे बिफोर आई रिकॉर्डेड हैप्पी माइंड्स. और बड़े मजे की बात क्या हुई, I'll share with you. A lot of you shared with me. I met some of you this week in a few programs of mine, and some of you messaged, some of you spoke with my team. कि हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि वो रिकॉर्डेड एचएम था. जब आपने बोला कि आई कांट रीड द कमेंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, तो हमें लगा कि अच्छा ये रिकॉर्डेड है. बिकॉज कुछ फर्क नहीं, एक्सेप्ट दैट थोड़ा सा लैग हो रहा था इन टर्म्स ऑफ मेरा वॉइस और मेरा वीडियो के बीच में. वो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में हल्का सा जब वो प्ले किया गया तो चैलेंज आया, एंड हम कुछ नहीं कर सकते थे उसके बारे में, बिकॉज इट इज ऑलरेडी ऑन. सो दैट विच वी कुड नॉट, पहले वो चैलेंज आया नहीं, बट जब चालू हुआ तो फिर वो लगा कि हल्का सा 1-2 सेकंड का लैग आ रहा था, बट देन दैट वाज ओके. सो लॉट ऑफ पीपल सेड हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड है. सो एक मजे की बात क्या हुई, आई कीप ऑन मेकिंग दीज वीडियोस व्हिच आई डोंट लाइक मेकिंग फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ आवर्स, और ऑनलाइन है तो यू हैव टू कीप ऑन पोस्टिंग सम वीडियो, तो यू हैव टू कीप ऑन रिकॉर्डिंग. मेरा ये प्रोग्राम है, आइए इस प्रोग्राम में. आई डोंट लाइक इट फ्रॉम, इफ यू वर टू आस्क मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, आई डिटेस्ट इट. आई डिसलाइक इट कि मैं वीडियो बनाऊं टू प्रमोट अ प्रोग्राम, बट देन दैट्स द वे इट इज. यू गॉट टू डू व्हाट यू गॉट टू डू, एंड ये नॉर्म है. ये मैंने लाइफ में वो नहीं की, मैं ये लाइफ में मैंने कभी नहीं किया था कि लास्ट 25 years of my life till we had online selling and things happening, I had never asked people, through a video or through a whatever it is. People saw, people heard, people were told, referred, and my team met, and that's how they would always come for the programs. तो ये जो रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो मैं मेरा बिल्कुल कनेक्शन नहीं होता था रिकॉर्डिंग में. तो मैं वो समझ में आया, फिर रीटेक करना है, फिर दोबारा रिकॉर्ड करना है, दोबारा रिकॉर्ड करना है. And there are videos of 1 minute, 2 minute, 3 minute videos. But when it came to that 1 hour happy minds, वो 1 hour happy minds happened in one go. मतलब it just happened in one go. So I started recording and then I was in the flow. मुझे लगा नहीं कि मैं आपसे लाइव बात नहीं कर रहा हूँ. And I just accept that I missed those comments in between, जो आप लोग के comments आते हैं. I read those comments and I love reading those comments. And वो बस comments के अलावा बाकी it just went in. And I was sharing with my team that that's the beauty of Happy Minds. The moment I'm there and I get into that mode of Happy Minds, it just is a free flowing process. So love you for being there. Anji, chalo. We have Sandeep say Ram Krishna Hari Ji. Apritam. I'm Anand from Pune, joining for the first time. Welcome, Anand. Good morning. Chalo. I shared with you the last few Happy Minds. We shared about this very concept of what is a human being, what it is to be a human being. And I shared with you a few things. So Happy Minds में जो लोग पहली बार join कर रहे हैं, we start with some success stories, and then of course we start with meditation. Meditation के बाद we have some success stories. Success stories means people who have done something in their week, in the last 1 week, or something has happened with them. They feel good about it. So they share with me, with my team, and I pick up a few and to share with everybody. So that किसी की achievement से अगर हम प्रेरित हो गए और हमने भी सोचा हम भी कुछ करें, I think what could be much more beautiful than this? That as human beings, we inspire each other, and I think that's one more aspect of being a human being. कि as a human being, हम किसी इंसान को प्रेरित कर सकते हैं कुछ बड़ा, कुछ अच्छा करने के लिए. और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब we were just born as a human being. We are not living as a human being. For a human being inspires through his life, through his work, through whatever he does. There is somebody else who gets inspired to do that work in a better way. So that's why we have success stories. So today I have a few success stories. This first one is from uh, Yogita,
जगधाने एंड उसने मुझे फोन भी किया, फिर उसने बहुत लंबा सा मुझे मैसेज भेजा एंड शी सेड सर आई वांट टू टेक अ मोमेंट टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू योर गाइडेंस एंड सपोर्ट थ्रू आउट माय जर्नी एंड डा 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 बहुत उसने लिखा। आई कैन नॉट थैंक यू, मैं जरा शॉर्टकट में बोल रहा हूँ उसको। आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर योर अनरेवलिंग बिलीफ इन मी। अब ये मुझे लग रहा है चैट जीपीटी का कंटेंट तो नहीं है, बट उसके भाव में समझ रहा हूँ। योर एबिलिटी टू सी माय पोटेंशियल हेल्प मी हार्नेस इट हैज बीन नथिंग शॉर्ट ऑफ रिमार्केबल। लेकिन अचीवमेंट क्या है जो उसने लिखा बहुत नीचे जाके, पहले उसने मेरी बहुत तारीफ करी, गुड़ शक्कर सब लगाया उसने। उसके बाद वो लिखती है, आई एम प्राउड टू शेयर विद यू दैट योर मेंटरशिप हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन माय रीसेंट अचीवमेंट। आई गॉट द सीईओ कॉन्क्लेव अवार्ड इन स्विट्जरलैंड in top one category, and as well as till today I got 50 plus international awards as best consultant in insurance field. None of this would have been possible without your guidance, encouragement and belief in my abilities. Once again, thank you for everything you have done for me, and da 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 da. I feel happy, satisfied when I'm doing, and I'm relating with you, and this is very important for me. Thank you so much. Lots of love, MG. And ऐसा करके उसने मुझे भेजा. So I was speaking to her and I said, wow, 50 plus award. And this girl has been through a lot in life because I know her last 10, 12 years. As a single mother, there is so much which you have to go through. You have to bring up your daughter and take care of family and also be the earning member in your family. So, and the way she has put herself, so I could connect with when she was speaking to me, and 50 plus international awards in her chosen field of profession. I think it speaks volumes of the kind of work she's doing. So I was happy to listen to the story. Another one was a sweet little success story, which I said, let me share this. बाकी एक दो को मैं शेयर नहीं कर पाया बिकॉज दो तीन ही शेयर करता हूँ, तो ये मैंने आपसे सोचा शेयर करूंगा. दिस इज फ्रॉम वन ऑफ क्रिसेलिन्स डॉटर, केदार काले, उसकी लड़की अपर्णा. शी मैसेज मी yesterday and she says, sir, this is Aparna, I'm Kedar Kale's daughter. And ऐसे करके उसने मैसेज लिखा एंड शी सेज, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड 21 किलोमीटर्स का मैराथन जो अभी लास्ट संडे हुआ, वो मैंने पुणे मैराथन को किया. And then she says something beautiful. She writes, I'm glad to share that my journey was started by Chrysathon. हमने 8-10 साल पहले एक 2015 में हमने एक मैराथन ऑर्गेनाइज करी थी बाय द नेम ऑफ क्रिसाथॉन. तो क्रिस्टलिस इज आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड वी सेड लेट्स मेक पीपल हेल्दी, you know, and it was all about family side. So can we as family create a culture of keep staying healthy? So the focus was more on the family side. So we had Christians और उनके family, husband, wife, बच्चे, ऐसा करके हमने कहा let's jog. So उसमें 5 किलोमीटर था, 10 था, 21 किलोमीटर का हमने ऐसा मैराथन रखा. And there Aparna was there. I think she was that time 10 साल 11 साल पहले, she was around 5 or 6 years of age. एंड मुझे मालूम नहीं कितनी उसकी एज होगी, बट मेरे पास उसकी एक फोटोग्राफ थी जहां वो अपने फादर के साथ भाग रही है. तो कल जब उसने मुझे मैसेज किया तो मैंने कहा, हाँ, मेरे पास एक फोटोग्राफ है. मैंने फटाफट ढूंढा, अपने फोल्डर में निकाला, इधर उधर निकाला एंड फिर मैंने वो फोटो निकाल के उसको भेजा कि मैंने कहा, इज दिस यू? और उतनी छोटी सी वो पापा का हाथ पकड़ के वो भाग रही है एंड शी सेज यस दिस इज मी. एंड आई सेड वाओ, कि कौन सा बीज कब बोते हैं और उस बीज से क्या पेड़ बन जाता है, क्या एक वृक्ष लग सकता है, यू नेवर नो. एंड 10 साल, almost on 9 years now, and there's this girl who was kind of, पापा ने पुश किया होगा उस समय कि चल भाग मेरे साथ. From there to now she completing the first marathon of her life. So it was not about just a marathon. I feel एक consciousness, एक अगर 15-16 साल के बच्चे के अंदर एक अगर ये जागृति आ गई कि उसने अपने हेल्थ का ध्यान रखना है और उसलिए उसने मैराथन भागने चालू कर दिया, आई थिंक इट इज सो वंडरफुल, सो वेरी फिनोमिनल. सो आई थॉट आई शेयर दिस स्टोरी विद यू कि कितना जरूरी है कि एज पेरेंट्स, एज लीडर्स, वी काइंड ऑफ क्रिएट द राइट एनवायरनमेंट इन द हाउस. और बच्चे हमसे ही सीखते हैं ना, और कहाँ से सीखेंगे? सबसे ज्यादा हमसे सीखते हैं. और एक बहुत बड़ी जवाबदारी है दैट we kind of through our lives we push our children, not by saying but by living. We push our children in on the right track, and that has been the endeavor of mine last so many years. बहुत सारे events हमने किए, बहुत सारे initiatives लिए जहाँ पर as families I've kind of pushed families to become a lot better
as families. Because फैमिलीज अच्छी होंगी तो फिर सोसाइटी अच्छी होगी, और सोसाइटी अच्छी होगी तो देश अच्छा होगा. It all starts from how strong we are as families on all aspects of our life. And इसी में just want to add one thing, since अभी मैं बात कर ही रहा हूँ तो फिर मैंने कहा let me add. इसीलिए हमने ये एक इनिशिएटिव लिया है on 17th. Those of you are in Pune and those of you are who can make it, come with their families. In terms of there's a initiative called Family Hum. So this is not for individuals कि कोई individual आके register कर रहा है. We don't want individual people there. We want family की मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं, तो together we'll understand what it is to grow as a family. कितना अच्छा हो अगर सोचो कि आप एज अ फैमिली आप बहुत सी चीज कर पा रहे हो, डिस्कस कर पा रहे हो. सो आस्क योरसेल्फ, व्हेन वाज द लास्ट टाइम you took out time to discuss about your dreams with your family. कि मम्मी डैडी बच्चे बैठे हैं, and then as a family you discussed about your dreams कि बच्चों ने क्या करना है. अच्छा, माँ बाप ने क्या करना है, तो बच्चे सुन रहे हैं कि मम्मी पापा के सपने क्या है. माँ बाप सुन रहे हैं कि अरे मेरे बच्चे के सपने ये है. एंड आई रिमेम्बर लॉन्ग बैक व्हेन वी हैड दिस 2009 की बात है, मैंने एक ऐसा रखा था. वी हैड अराउंड 500 people in the hall and all families. And my children, Gautam, Siddharth, they were 5 years of age that time. And they also were there, and Rachna, me, हम लोग भी अपना बैठे, हम लोग we were talking about our dreams. And I think Gautam या सिद्धार्थ, उन दोनों में से एक ने कहा कि I want to have black belt in karate. And wow, it was a dream, and we said, wow, this is one fantastic dream. And कुछ साल बाद both of them got a black belt. उनका जो उनके लेवल का कराटे में था, they got a black belt. And they suddenly said, पापा ये हमने कहा था ना, देखो हो गया हमारा. I said, this is phenomenal. This is phenomenal that you remember it. तो अगर बच्चों के मन में ये बात चली जाए कि हम जो सोचते हैं, हम जो इमेजिन करते हैं, हम जो ड्रीम करते हैं, वो आज नहीं तो कल ना कभी वो हकीकत में आ सकती है. मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर छोटे बच्चों के मन में बात आ जाए कि हम जो सपने देखते हैं, हम जो एस्पायर करते हैं, हम जो चाहते हैं, अगर वो हकीकत में बदल सकती है, अगर ये बात उनके मन में आ गई at a small age, imagine how much they will be aspiring for as they grow up. How much of a belief they will have in this concept कि यार let's dream, let's aspire. बहुत से लोग तो एस्पायर ही नहीं करते क्योंकि उनको डर होता है कि होगा नहीं होगा. ये डर भी फिजूल का है, मतलब कोई सेंस नहीं है इसका, बट स्टिल ये डर भी क्यों होना है. So this is what, and I was thinking about it when I read Aparna's message. I said, wow, isn't it amazing कि कौन सी चीज कब हुई और उसका इम्पैक्ट क्या होता है. तो कौन सा एचएम आप कब सुनते हो, और वो एचएम जो है कब जाके वो फ्रुक्टिफाई होता है, कब जाके उसका वो बीज जो है जर्मिनेट होता है और उसका कब पौधा निकलता है, यू नेवर नो. तो हमारा काम क्या है एज लीडर्स, मेरा आपका, हम सब जितने भी लीडर्स हैं, हमारा काम है हम बीज बोते रहें अपने बच्चों के मन में, अपने आसपास समाज में. हम बीज बोते रहे, अच्छे बीज. कौन सा बीज कब जर्मिनेट करेगा, कब एक पौधा बन के निकलेगा, कब उसका वृक्ष बनेगा, हमें नहीं मालूम. बट कैन वी बी द सोर्स कि वी कीप ऑन सोइंग सीड्स, वी कीप ऑन पुटिंग सीड्स. एंड एक समय आएगा जब ये पूरी पृथ्वी जो है हरी हो जाएगी अच्छे पेड़ों से, अच्छे वृक्षों से, क्योंकि किसी ने तो बीज बोए थे ना, किसी ने तो पेड़ लगाए थे. एंड आई थिंक दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हिच यू एंड मी हैव. तो ये हम लोग 17th of December को एक इनिशिएटिव कर रहे हैं, फैमिली हम. एंड इट इज ओनली फॉर फैमिलीज. इंडिविजुअल, अभी कुछ लोगों ने इंडिविजुअल ज्वाइन किया, तो मेरी टीम उनको फोन कर रही है कि सब इंडिविजुअली आके यू विल जस्ट सिट देयर एंड यू विल गेट सम ज्ञान. तो ज्ञान का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है. इट्स अबाउट कैन यू कम विद योर फैमिली एंड कैन यू टुगेदर discuss. So when was the last time when you shared your dreams? When was the last time as a family you sat together और आपने कहा कि अरे चलो मैं आपकी अच्छी आदतें देखता हूँ, आपकी अच्छी आदतें कौन है. एंड देन द चिल्ड्रन आर टेलिंग पापा हिज गुड हैबिट्स, पापा इज टेलिंग अच्छा बेटे तेरे अंदर मुझे अच्छी आदतें लगती है. When was the last time you said I don't like this in you, in a healthy environment? And a child telling his father or his mother, माँ तेरे अंदर ये आदत अच्छी नहीं है. And in a healthy, in a structured environment, when was the last time you had some healthy conversations? When was the last time you thought about what kind of environment in the family we should have?
तो एक ये इनिशिएटिव है, if you feel that this is worth being a part of, then I think you should come for 17th, and it's going to be a great. We have some seats still with us. If you want to be a part of it a week from now, then be a part of it. My team will put the link on the chat here, and it is not online. I'm sorry, it is not online. It is offline. It is offline, and because I want families to sit in front of me. I will be there talking with them. कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ कम्युनिकेशन करेंगे, एंड ऑनलाइन में क्या होता है, देन आई एम नॉट एबल, मेरे को वो पकड़ नहीं आती. लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग, बट इट्स ऑफलाइन. एज ऑफ नाउ इट्स ऑफलाइन. सर, वी आर कमिंग फ्रॉम अहमदनगर. ओह वाओ, दैट्स नाइस. वी आर कमिंग. श्रुति इज कमिंग फ्रॉम अहमदनगर. बट सी इफ यू कैन मेक इट देयर. बाकी जिंदगी चलती रहेगी. Good morning, sir. Kuldeep here. This is my first Happy Minds. I am from Pune. I have attended. Okay, welcome, Kuldeep. Welcome. चलो आगे बढ़ते हैं. So thank you, Aparna, for giving me this story, and for making me share this story with everybody. It's such a wonderful thing. Uh, Baki to stories, there are feedbacks about last week's HM, and then it went on well. We never realized. So love you, Sham. Love you, Mansi, for sharing whatever you have to share. And from our side, we had I had an amazing batch of transformational leadership with 100 plus participants, and we had some awesome time. And that's what Kuldeep was saying, that I was there with you in the batch. क्या धमाल और क्या लीडरशिप के क्लैरिटी लेके हम लोग वापस आए. And I think 2 दिन was pure energy levels at the highest. And I was just thinking about it, that you have an energized, lively audience, it gets the best out of you. So मेरा best हमेशा निकला है when I have people there who are energized, who are lively, who are peppy, who are looking forward to life. इतना आता है बह के, इतना बह के आता है. So that's why there is no offline का कोई तोड़ नहीं है, offline का कोई विकल्प नहीं है. I feel what offline brings is what offline brings. But yes, online is second option. But I'm sorry, I'm saying it online. That offline is a great option, but that's the way it is. So we had a great time in the leadership batch. I just want to take you ahead with something which I feel is so very vital for leadership, and all of you as parents, as leaders, as entrepreneurs, जो भी मुझे सुन रहे हैं, ये बड़ा important है जो मैं आपसे कह रहा हूँ. And see if you can connect with what I'm saying. This realization has been there with me, what I'm going to share with you. But along with this realization, as I live my day, with every day this realization goes deeper, deeper, deeper. कि leadership की जो जिम्मेदारी है वो क्या है, leadership का रोल क्या है, leadership क्या रोल प्ले कर सकता है. So I'm just going to give you some insight on one of the aspects of leadership today. So hang on to it. And जैसे मैंने आपसे पहले कहा, कौन सा happy minds आपके लिए, in the future it can be the happy minds of your life. You never know. You never know. There is a concept which I say in my leadership batches called Saptu Bada Niyam. I don't know if you've heard that. The Swami Chinmayanand would always talk about this Saptu Bada Niyam, and he would explain that how during his sermons and his preachings, which statement of his would be the vada for you. So he would say, let me narrate that story with all of you. So, and I've kind of created a story from in my own way, but स्वामी जी ने जिस ढंग से कहा, उसका मैं मीनिंग एक सरल तरीके से आपको बताता हूँ. Let's say I have some names in front of me. चलो ठीक है. Let me take the name of Sumit. Sumit says, sir, मैं हजारीबाग से हूँ, and this is my first happy mind. So Sumit का नाम ले लेते हैं because he's the first time he has joined in from Hazaribagh. So let's say Sumit is there, और Sumit जाता है एक रेस्टोरेंट में. Sumit, मुझे ढंग से सुनना. If you're listening to me, type in yes. Yes, I'm there, and I'm alive, and I'm listening to you. And type in Sumit. Yes. Oh, good. चलो, बाकी लोग भी जिंदा रहना. So let me just take an example with Sumit's name, and Kuldeep भी एक बार मैंने नाम पढ़ा कि Kuldeep also here for the first time. So let's say Sumit is very hungry and he goes to a restaurant, and restaurant में जो है मैनेजर बैठे हुए हैं कुलदीप नाम के, and कुलदीप से पूछते हैं सुमित कि
भाई आपके यहाँ क्या है, मुझे बड़ी भूख लग रही है, व्हाट इज दैट थिंग विच विल काइंड ऑफ टेक केयर ऑफ माई हंगर। तो कुलदीप कहता है भाई हमारा सुबह सुबह का समय है सर, सुबह तो हम लोग का वड़ा बनता है, मेदू वड़ा। आप मेदू वड़ा खाएंगे तो आई एम श्योर यू नो योर हंगर विल बी टेकन केयर ऑफ। तो ऐसा करके सुमित बोलता है ठीक है भेजिए आप। सुमित सिट्स एंड द वेटर गेट्स द प्लेट ऑफ मेदू वड़ा। सुमित को इतनी भूख लगी थी कि फटाफट उसने वो मेदू वड़ा खा लिया। एंड देन ही सेज टू द वेटर एक और लेके आओ। वेटर एक और लेके आ जाता है। सुमित वो भी खा लेता है। देन सुमित सेज गेट मी वन मोर प्लेट। वो एक प्लेट और लेके आता है, थर्ड प्लेट आती है, थर्ड प्लेट भी सुमित खा लेता है। और फिर वो कहता है एक और लेके आओ। ऐसा करते 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 6 प्लेट सुमित खा लेता है। और 6 प्लेट खाने के बाद एक बर्प लेता है, डकार लेता है, उसके बाद वेटर को बोलता है अच्छा एक और लेके आ। वेटर बड़ा खुश कि यार ऐसे कस्टमर भगवान रोज भेजा करे, जो एक ही कस्टमर जो है 6-7 प्लेट खा ले। कहाँ हर किसी को सर्व करते बैठेंगे, एक ही को सर्व करें और एक ही बड़ा बिल बना के जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सो वेटर इज ऑल्सो वेरी हैप्पी। एंड फाइनली सुमित हैज द 7th प्लेट और उसका पेट भर जाता है और वो ही सेज आई थिंक इट्स इनफ नाउ फॉर टुडे। और उठ के वो बिल देने जाता है काउंटर में कुलदीप के पास। तो कुलदीप को वेटर जो है पीछे से आवाज ऐसा हाथों से इशारा करता है, इट्स अ नॉर्मल टिपिकल स्मॉल रेस्टोरेंट। सो वो पीछे से अपने बाकी लोगों को सर्व करते करते पीछे से बोलता है कि भाई 7 प्लेट जो है वड़ा खाया। सो अज्यूमिंग दैट पर प्लेट 10 रुपए की प्लेट है। तो कुलदीप जो है बिल बनाता है, 7 7 into 10 70 रुपीज। एंड ऐसे करके 70 का बिल देता है सुमित को। तो सुमित अपने पॉकेट से जो है बिना बिल देखे, उसको पड़ी भी नहीं है कि बिल में क्या लिखा हुआ है, वो 10 रुपए का नोट निकाल के दे देता है। तो कुलदीप रुका हुआ है कि अभी ये 60 रुपए और निकालेंगे। तो सुमित जो है वो सौंफ खाने लग जाता है। दैट्स इट। तो कुलदीप कहता है सर आपने बिल देखा नहीं, आपका बिल 70 हुआ है। सुमित कहता है 70 क्यों हुआ है? तो आपका तो एक प्लेट 10 रुपए का है। कहते हैं हाँ। तो 10 रुपए दे देने मैंने आपको। वो कहते हैं नहीं सर आपने 7 प्लेट खाई है। कहते हैं हाँ। तो 7 into 10 सिंपल गणित है, 70 रुपीज। सुमित कहता है नहीं मैं तो 10 ही दूंगा ना। कुलदीप गेट्स अ बिट एजिटेटेड, आप 10 क्यों दोगे जब आपने 7 प्लेट खाया है? तो सुमित से मैंने आपसे पूछा था क्या वो चीज है जिससे मेरा पेट भरेगा। तो मेरा पेट जो है वो 7वें प्लेट से भरा, तो मैं 7वें प्लेट के पैसे दूंगा। दिस इज कॉल्ड सप्तवड़ा नियम। तो स्वामी चिन्मयानंद वुड ऑलवेज स्पीक अबाउट दिस इन हिज सेशंस दैट सप्तवड़ा नियम। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि हर हैप्पी माइंड्स में मैं आपको वड़े देता रहूंगा। I'll keep on dishing वड़ा आफ्टर वन वड़ा आफ्टर अनदर वड़ा आफ्टर अनदर वड़ा। मुझे नहीं मालूम कौन से वड़े से आपका पेट भरेगा। मुझे नहीं मालूम कौन सा वड़ा जो है आगे जाके आपकी लाइफ में एक वृक्ष का रूप ले लेगा। मुझे नहीं मालूम आपकी लाइफ में वो वृक्ष कितने फल आपको देगा और वो कौन सा वड़ा होगा। सो एवरी HMI मैं सुबह तैयारी करता हूँ, आटा पीसता हूँ चक्की में और फ्राई करता हूँ और मैं वड़े लेके बैठ जाता हूँ कि HM चालू हो तो मैं आपको वड़े बांटना चालू करूँ। सो आई फील ऑल ऑफ अस एज लीडर्स, आप में हम सब जितने भी हैं, हमारा काम क्या है कि हम अपने बच्चों के मन में ऐसे बीज डाल दें, ऐसे वड़े दे दें। हमारे जो जो हमारी टीम है जिनके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी लाइफ में हम कुछ वड़े डाल दें। वी डोंट नो कौन से वड़े से उनका पेट भरेगा, वी डोंट नो विच सीड विल मेक देयर लाइफ। एंड वी डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस कि भाई ये हमें मिलना ही चाहिए। बट हमारा काम है कि हम बस बीज फेंकते रहें। और कौन सा बीज से उनकी लाइफ कहां पहुंच जाएगी, यू विल बी अमेज्ड। You just throw a stone in a pond, and we never know how far the ripples will go. What one insight of yours, what one way of living of yours can do to people around you, you will be amazed with that. And that's one awesome quality of a human being, that we can transform lives around us. We can shape lives around us. We can add value to life around us. And this is one thing which I've been sharing with you. मैंने आपसे share किया. This is one quality of mine which I've been living consciously earlier in my life, and now it is a life which happens unconsciously. And this is what I wanted to pick up today, that as leaders, as people who are living at a certain level, ये बड़ा जरूरी है कि हम अपने आसपास जितनी भी सिचुएशंस हैं
उसमें से जितनी सिचुएशन हो सके हम वैल्यू ऐड करें, और जब हम वैल्यू ऐड करेंगे ना, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन। वी डोंट अलाउ सिचुएशंस जस्ट पास बाय लाइक दिस। किसी भी सिचुएशन को अपने हाथ से, अपने थ्रू ऐसे मत जाने दो। आपके पास जो भी सिचुएशन आ रही है, उस सिचुएशन में वैल्यू ऐड करके उसको जाने, कि जो कुछ आपके पास आया, वो आपके थ्रू जब जाएगा तो फिर कुछ अच्छा बन के जाना चाहिए। एंड दैट वैल्यू एडिशन इज द मार्क ऑफ लीडर्स। तो वैल्यू एडिशन कहां कर सकते हैं? I'll share with you a few things. बट बिफोर दैट, मुझे बताओ कि आप लोग मेरे साथ हो कि नहीं हो? Hmm. Rishi says to all HMs are most important for us. Many HM played important role in my life. Absolutely love you, Rishi, for sharing this. In fact, Anji, we are always with you. जयपुर से तेज बोलता है, सर आई एम ऑलवेज विद यू. Lovely, lovely. Yes. So let me share with you something beautiful, which I feel that this can be one most beautiful vada, one awesome vada for all of you. Rishi ne bola ki sir, we are there in every HM, and many HMs have played important roles in my life. I want to share with all of you this. I have taken batches, I have taken programs last 26, 27 years. Hundreds and thousands of batches have happened. Hundreds and thousands of people have come in. But I've been told time and again, it's not the Rishi ka message पढ़ के मैं बोल रहा हूँ, but this is one again reminder from Rishi and people like Rishi, that happy minds have transformed more lives. Happy minds have been much more impactful than anything else which I have done so far. Yes, in programs I have a structure which people get, and so that structure makes it all the more easy for people to connect. But उस structure के ऊपर बार-बार hammering होती है happy minds की तरफ. So those who have been with me for programs, they say after the programs, ये जो happy minds है, इससे हमारी जिंदगी बदली. So I would absolutely relate with it. So every happy minds कहीं ना कहीं किस रूप में क्या चीज मन में जा रही है, हमें शायद याद नहीं होता, हमें शायद उसका आभास भी नहीं होता. बट जब समय आता है और वो जब एक वो जर्मिनेट होता है वो थॉट, और एक एक्शन के रूप में निकल के आता है, ट्रस्ट मी, यू विल बी लेफ्ट अमेज्ड कि एक्शन आया कहाँ से. Just like, in the morning you're getting up, and you're getting ready for your work, and you're getting ready for your office, और आप ऐसी गाना सुन रहे होते हो पीछे, रेडियो में गाना चल रहा है, और आप तैयार हो रहे हो, बाल बना रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, और दिन में कभी क्या होता है, आप गाड़ी चला रहे हो, कभी आप या ऑफिस में काम कर रहे हो, और वही गाना आपके जबान पे आ जाता है. आपने कॉन्शियसली याद नहीं किया, आपने उसको सोचा नहीं कि मैं ये गाना भी गाऊंगा, लेकिन आपके वो होठों पे वो गाना आ जाता है, क्योंकि सुबह समवेयर इन योर सबकॉन्शियस दैट सॉन्ग वेंट इन. वो गया, और कब वो जर्मिनेट हो रहा है आपको नहीं मालूम. वो दिन में होगा, कल होगा, परसों होगा, कभी नहीं होगा, वी डोंट नो. बट उसका जाना एक संभावना क्रिएट करता है कि वो कभी हो सकता है जब. एंड दैट्स व्हाट हैप्पी माइंड्स डज. वो कहीं ना कहीं किसी रूप में कोई विचार चले गया अंदर, and somewhere over a period of time you create a possibility of it coming out in some form of an action. So what I'm sharing with you right now is, as a leader, as a person, as a person who's living a life of responsibility, एक ये सोच बना लो कि मेरे साथ या मेरे पास जो भी चीज हो रही है, मेरे पास कोई भी चीज आ रही है, जब वो मेरे से जाएगी, it will not go the way it is. It will go in a very different way. It will go with a lot of value addition. It will go in a transformed way. और मैं आपको भी कनेक्ट कराता हूँ चीज. हम दिन भर में ना बहुत सारे काम करते हैं which are which are mere transactions in life. तो आप फ्रॉम अ होम पर्सपेक्टिव, तो कोई आपको मिल्क सप्लाई कर रहा है, कोई आपको न्यूज़पेपर सप्लाई कर रहा है, कोई आपके घर में आके काम कर रहा है एज अ मेड, कोई आपका आता है, सफाई वाले आते हैं, सफाई वाले आपका घर का कचरा लेके जाते हैं. So you have so many people who are kind of transacting with you, or you are transacting with them. You go to your office and you have many people who come to work in your office, or maybe if you're working in an office, you have so many people who are working with you, and there is somebody for whom you are working, right? तो ऐसा करके आपके ऑफिस में आप ट्रांजैक्ट करते हो, आप कुछ अपना काम देते हो, उसके अगेंस्ट में आपको पैसा मिलता है.
वो पेपर वाला पेपर देता है, उसका केस में उसको पैसा मिलता है। मेड आके काम करती है, उसका केस में उसको पैसा मिलता है। वो दूध वाला आके दूध देता है, उसका केस उसको पैसा मिलता है। ड्राइवर आके ड्राइविंग करता है, उसका केस उसको पैसा मिलता है। सो एवरीबडी इज ट्रांजैक्टिंग एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम। आप रिक्शा में बैठे हो, टैक्सी में बैठे हो, ही ड्रॉप्स यू टू अ सर्टेन प्लेस, आप उसको पैसा देते हो, ट्रांजैक्शन हो गया। तो हम सुबह से शाम तक हम ट्रांजैक्शन करते रहते हैं ना। एक ह्यूमन बीइंग की बड़ी अच्छी खास बात है कि वो एक ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शनल सिचुएशन को वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल सिचुएशन बना सकता है। ये उसकी काबिलियत है कि किसी भी ट्रांजैक्शनल सिचुएशन को वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल सिचुएशन बना सकता है। कि आपके यहाँ कोई इंसान काम करने आया और उसने 1 साल, 2 साल काम किया आपके यहाँ, तो वो ट्रांजैक्शन था कि वो आया, उसने काम किया, आपने उसको पैसे दिए। एंड सिंपल, that's what happens to everybody and every place you go, the same thing happens. This is the beginning, this is the association. But अगर आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर हैं, अगर आपके अंदर वो एक बात है कि नहीं, नहीं, आई कैन नॉट जस्ट हैव अ ट्रांज़ैक्शन। मैं ये बच्चा मेरे पास 1 साल के लिए आया है, 2 साल के लिए आया है, मुझे नहीं मालूम कितने दिन के लिए आया है। ये मेरे हाथ से कुछ बन के निकलना चाहिए। You will value add to his life. You will just not pay him a salary, you will value add. शायद आपके नीचे वो कुछ पड़ जाएगा। शायद आप उसको किसी ट्रेनिंग में भेज दोगे। शायद आप उसको उसके जीने का तरीका अच्छा कर दोगे। शायद आपके साथ रह के उसके कपड़े पहनने का तरीका अच्छा हो जाए। शायद आपके साथ रह के वो उसके बोलने-चालने का तरीका अच्छा हो जाए। तो आया था वो काम करने, शायद आपके यहाँ से फिज़िकली फिट होके निकल जाए। यू हैव वैल्यू एडेड टू हिज़ लाइफ। कल मैं था हमारा 10x हमारा जो एंथ्रोपल ग्रुप है, कल उनका एक से ऐसा गेट टुगेदर था। एंड आई वाज़ देयर एंड बाय द टाइम आई रीच्ड होम एट 12:30 हो गया था। एंड I met many of them after many months, some after a few years. क्योंकि अभी आफ्टर कोविड देन थिंग्स हैव बिकम ऑनलाइन, बट दिस जब इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ तो मैं कहा लेट मी गो देयर एंड मीट देम, एंड दे सेड नहीं सर आप आओगे अच्छा रहेगा। एंड आई वाज देयर एंड आई वाज टॉकिंग टू, लोग मिलते रहे, आते रहे, बात करते रहे, एंड आई वाज आस्किंग अबाउट देयर लाइव्स, आई वाज आस्किंग अबाउट व्हाट्स हैपनिंग in the business side, family wise. So one of the Chrysalians, he came and I said, how's the travel business going on? And he was shocked. He says, मैं आपको मिल रहा हूँ 4 साल बाद। मैंने कहा "हाँ, मैं कोविड से पहले आपको मिला था, कोविड के बाद मिला ही नहीं आपको मैं।" तो मैंने कहा, "हाँ, तो आपको मेरे बारे में मालूम है, आपको मेरा बिज़नेस मालूम है कैसा है और आपको मालूम है मेरे क्या चैलेंजेस थे। आप कैसे कर लेते हो ये?" तो मैंने भी अच्छा, आई नेवर थॉट कि ये इसको इस ढंग से ले रहा है। मैंने कहा, "आई डोंट नो बट" एंड आई रियलाइज्ड दैट द रीज़न व्हाई आई एम एबल टू रिमेंबर, रिकॉल एंड कनेक्ट विद हिम इज़ बिकॉज़ आई डोंट जस्ट टॉक, आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड। आई वांट टू वैल्यू ऐड कि ये मेरे पास 2 मिनट की मेरे पास मेरे से बात कर रहा है, तो ये ट्रांज़ैक्शन नहीं हो सकता। 2 मिनट का समय उसने मैंने दिया उसको, उसने मुझे समय दिया। इसमें कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, कुछ तो वैल्यू ऐड होना चाहिए मेरी तरफ से। एंड आई कीप ऑन एडिंग वैल्यू। आइदर आई विल गिव सम बिज़नेस इनसाइट, आइदर आई विल टॉक अबाउट फैमिली, आई विल लिसन, आई विल गिव हिम सम काइंड ऑफ अ रेफरेंस। मैं कुछ तो वैल्यू ऐड करूँगा, मैं उसको सिर्फ एक ट्रांज़ैक्शन बना के नहीं छोड़ सकता। ये मेरा नेचर है। आई वाज़ इन इंदौर एंड हम लोग सुबह-सुबह पहुँचे तो सुबह मैं पहुँचा तो मैंने कहा यार चलो लेट्स हैव सम कुछ खाते हैं। तो वहाँ 56 वो दुकानें हैं, वो एक एरिया है व्हिच आई एम श्योर एवरीबॉडी हू हैज़ बीन टू इंदौर वो वहाँ जाता है। तो मैं वहाँ सुबह-सुबह रचना, मैं एंड माय फादर इन लॉ हम लोग वहाँ गए एंड वो सब 56 दुकानें हैं लाइन से। तो देयर वाज़ वन शॉप जहाँ पर बहुत भीड़-भड़क्का हो रही थी। तो नॉ नेचुरली आप यू गो एंड गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड कहाँ पर भीड़-भड़क्का हो रही है, बाकी शॉप्स खाली पड़ी हैं। तो वहाँ गए, हमने वहाँ कुछ खाया। एंड देन आई सेड आई एम नॉट, मुझे एक फ्लेवर नहीं आ रहा है खाने का। तो मैंने कहा लेट मी जस्ट वॉक एंड देन आई 2-3 शॉप छोड़ के आई फाउंड दिस पर्सन जिसका डोसे का काउंटर था। तो आई सेड क्या बना रहे हो भैया आज सुबह-सुबह? ऐसे ही मैंने मुस्कुराते हुए मैंने कहा कैसे हो भैया एंड क्या बना रहे हो? तो उसने मुझे देखा मुस्कुराते बोला आप मेरे हाथ का ही डोसा खाओ। तो मैंने कहा ये डोसा किसका तरह बना हुआ है? क्योंकि उसका डोसे का आटा अलग था। मैंने कहा ये रेगुलर डोसा तो नहीं लग रहा है? कह रहे दाल का डोसा बनाएँगे आपके लिए और इसमें चावल है ही नहीं, दाल है, ये है, बहुत सी चीज़ उसने बताई। तो उसने कहा कि मैं बनाता हूँ। मैं कहा नहीं देख मुझे डोसा कम ऑयल का चाहिए, ये ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए एंड
ही सेड ठीक है। और उसने बीच में बोला कि मेरे वाला डोसा आप खाओ ना। मैं कहा तू पहले मेरा वाला बना ना। तो ऐसे करके हमारा हुआ और कन्वर्सेशन हुआ एंड वो खाया एंड डोसा वाज़ वेरी गुड। एंड देन आई सेड चल एक और बना डोसा। तो उसने कहा अब तो मेरा वाला मैं आपको खिलाऊँगा। तो उसने फिर अपना वाला बनाया और वो भी बड़ा अच्छा बनाया। तो वी वर हैविंग डोसा, हम बैठे, हम डोसा खाया और 2-3 चीज़ खाई हमने। एंड देन आई केम एंड वी पेड द बिल। आई केम टू टिप हिम एंड आई वांटेड टू टॉक टू हिम। तो आई सेड तूने इतना बढ़िया डोसा बनाया वो तो है, लेकिन तूने जिस ढंग से प्यार से बात करी और जिस ढंग से अपनेपन से तूने मुझे बोला कि नहीं आप मेरे हाथ वाला खा के जाओ। एंड इट वाज़ नॉट बिकॉज़ तेरे को हमारा बिज़नेस चाहिए था। तूने जेन्युइनली बोला कि ये मेरी स्पेशलिटी है और मेरे हाथ का अगर ये नहीं खाया तो फिर आप समझो आपने डोसा नहीं खाया। तो मैं कहा इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। एंड मैंने उसका एक फ़ोटो खींची एंड ही वाज़ फ्रॉम राजस्थान एंड ही शेयर्ड हिज़ कुछ नाम मेरे निकल गया मन से बट क्योंकि वो बड़ा अजीब-सा राजस्थानी नाम था एंड आई वाज़ थिंकिंग ऑफ क्या नाम है, नाम मुझे याद नहीं आया। तो वो उसने बेचारी मैंने कहा लेट मी हैव अ सेल्फी विद यू। नाम भी याद आ जाएगा, बोलूँगा तो याद आ ही जाएगा। तो वो सेल्फी खींची एंड देन आई टिप्ड हिम एंड आई सेड चल आज तेरा दिन तेरा अच्छा सफल जाए। तो वो गया और उसने एक बुक निकाली। इट वाज़ ऑन स्पिरिचुअलिटी सम बुक जिस कुछ किसी संत को वो फॉलो करता होगा, उनकी बुक लेके आया और मेरे से कहा सर ये आपके लिए। मैंने कहा अरे! कह रहे नहीं सर वो ये आपके लिए है। सो समव्हेयर मैं तो आया था डोसा खाने, उसका काम था डोसा बनाना, ट्रांज़ैक्शन था ना। उस ट्रांज़ैक्शन में वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो गया कि उसने ढंग से बात कर ली, मैंने ढंग से बात कर ली, 2 हम हँस लिए, बातें हो गई, उसने अपना प्यार वाला डोसा खिला दिया, मैंने वो खा लिया, फिर मैंने सेल्फी ले ली, मैंने I had some good time, he gave me a book and somewhere I walked out as a much more transformed person and he also had I'm sure he had a flavor which made him different than what he was. Because he would not be doing with everybody. He would not be giving a book or giving a gift to everybody. He would not be smiling and talking to everybody like that. तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना उसके साथ में और मेरे साथ भी हुआ। तो मुझे लगता है कि हम सबके अंदर काबिलियत है कि हम हर ट्रांजैक्शन को एक ट्रांसफॉर्मेशनल सिचुएशन बना सकते हैं। आई हैव नेवर सैट इन अ टैक्सी और रिक्शा कहीं मैं जा रहा हूँ तो मैं ऐसा अ, सिर्फ बैठा हूँ अगर या तो मैं अपना काम कर रहा होता हूँ, तो मैं काम कर रहा होता हूँ। बट इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई विल इंश्योर आई विल हैव अ ग्रेट टाइम विद द गाय हू इज सिटिंग देयर। तो हम रिक्शे में बैठे हैं, मैं तो आई विल ऑलवेज टॉक टू द रिक्शा वाला। वो ट्रांज़ैक्शन तो है लेकिन क्या एक ट्रांसफॉर्मेशनल सिचुएशन हो सकती है क्या? एंड दैट्स हाउ इट इज़। सो इफ यू सी पीपल हु आर देयर विद यू फॉर एक तो ये तो एक्विनेंटेंस ये तो ऐसे ही मिल गए, स्ट्रेंजर्स हैं। फिर कुछ एक्विनेंटेंसेस होते हैं और फिर कुछ जो हमारे साथ बहुत जुड़े होते हैं। उनके लिए तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन का सिचुएशन क्रिएट करना ही है। इफ यू वर टू सी महाभारत तो भगवान श्री कृष्ण तो है वो तो सारथी थे ना। उनका काम क्या था? उनका काम था कि वो अर्जुन का रथ लेके चले और बस उनका वही काम था कि वो वॉर फील्ड में जा रहे हैं एंड युद्ध क्षेत्र में जाके वो उनका रथ चलाएं और अपना अर्जुन जो है वो युद्ध लड़े। तो वो एक ट्रांजैक्शन सिचुएशन था कि नहीं था? कि भई मैं तो आपका सारथी हूँ। लेकिन जब अर्जुन ने बोला कि पहले अध्याय में, पहले चैप्टर में जब अर्जुन बोलते हैं कि श्री कृष्ण मुझे आप बीच उसमें लेके जाओ, युद्ध के बीच में लेके जाओ, मुझे देखना है कि मेरा युद्ध किनके साथ। मुझे दोनों आर्मीज़ को देखना है। और जब वो लेके जाते हैं उनको बीच उसमें और अर्जुन देखते हैं कि अरे! ये तो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे सामने दुश्मन के रूप में खड़े हैं। ये तो मेरे परिवार के लोग हैं। ये तो मेरे पिता समान लोग हैं। माय ग्रैंडफादर इज़ देयर, माय फ्रेंड्स आर देयर, माय रिलेटिव्स आर देयर। मेरे गुरु लोग हैं, जिनसे मैंने पूरा बचपन निकाला वो लोग हैं। मैं इनके साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ? हाउ कैन आई फाइट? हाउ कैन आई बी द रीज़न फॉर दे डाइंग, फॉर दे बीइंग किल्ड? और जब उनके हाथ-पैर ढीले होते हैं और वो कहते हैं मुझे युद्ध नहीं लड़ना है और वो बैठ जाते हैं और बोलते हैं श्री कृष्ण को कि मेरे हाथ से मेरा धनुष नहीं उठ रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा सोच काम नहीं कर रही है, मेरी पूरे बॉडी के सब थर-थर काँप रही है, मैं नहीं कर सकता युद्ध।
तो वो ट्रांजैक्शन था कि वो सारथी थे और सारथी से वो बन गए उनके मेंटर, और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया अर्जुन का। एक ट्रांजैक्शनल अपॉर्चुनिटी को ट्रांसफॉर्मेशनल बना दिया, एंड नॉट ओनली फॉर हिम बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। तो भगवत गीता इज एन, वो बोलते हैं ना कि एक स्रोत बन गया है फॉर insight, for wisdom, not only for people of our culture but across the world। क्योंकि उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफॉर्मेशनल बना दिया। तो हम भी तो अपने किसी न किसी रूप में हम कहीं वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और यही तो लीडर का मेन काम है। कैन वी वैल्यू ऐड? क्यों, ट्रांजैक्शन तो सभी करेंगे यार, मेरे साथ हो कि नहीं? हाँ जी। इज इट कनेक्टिंग, मेकिंग सेंस टू यू? तो मेरा आपसे कहना है कि दिस वीक एज वी गो ऑन लिविंग आवर लाइव्स, वी कुड आस्क आवरसेल्व्स दैट, यू नो, कि मेरे हर इंटरेक्शन में क्या एक पॉसिबिलिटी है? तो शायद हर में नहीं होगा, लेकिन कहीं तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वी एंड अप ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड अराउंड अस इन सम वे, एंड वी डू लेस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड वी डू मोर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। तो जब हम सिर्फ आदान प्रदान करते हैं, बेस्ड ऑन हाउ मच we get and how much we give and we have a transaction happening, तो बहुत सूखा सूखा हो जाता है यार। वो बोलते हैं ना, वो कहानी आपने सुनी होगी, that you have one coin and I have one coin, so if I give to you my coin, you have two coins but I have none, or you give me your coin, तो you will have none, I will have two coins। बट अगर मेरे पास एक आइडिया है और एक आइडिया आपके पास है, मैं अपना आइडिया आपको देता हूँ, तो आपके पास दो आइडिया होते हैं और मेरे पास फिर भी मेरा आइडिया रहता है। या आप मुझे अपना आइडिया देते हो, तो मेरे पास दो आइडिया हो जाते हैं, आपके पास आपका विचार फिर भी रहता है। Isn't that transformation? Transaction is where I give to you and I'm left with none. You have two. ट्रांजेक्शन हो गया। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों का फायदा होता है, दोनों। तो जो माँ बच्चे को बड़ा करती है ना, तो माँ वो सब करती है जो उसको करना होता है। कभी डांटती है, कभी प्यार करती है, कभी पुश करती है। तो उसका हर एक्शन, हर उसका इंटरवेंशन विद अ चाइल्ड इज ट्रांसफॉर्मेटिव, कि बच्चा ट्रांसफॉर्म होता रहता है। वो सिर्फ उसको खाना पिलाना, उसका देखभाल ट्रांजैक्शन रूप में नहीं करती, पर ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। लेकिन अगर उसी बच्चे को अगर कहीं नैनी को दे दिया और वो नैनी ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं रही, तो नैनी ट्रांजैक्शन ही करेगी ना। वो उतना ही करेगी जो उसको करना है। उसको अगर साफ करना है साफ करेगी, उसको खिलाना है खिलाएगी, उसके कपड़े पहनाने कपड़े पहनाएगी, बट ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं रहेगी। वो बच्चा नैनी के साथ रह के या उसके भाई के साथ रह के या जो भी उसका वो जो भी आप बोलते होंगे उसका रह के वो बच्चा वो नहीं बन पाएगा। लेकिन जब माँ रहती है तो माँ वो सब काम भी करती है जो एक नैनी कर रही है। लेकिन साथ-साथ जो है उस बच्चे की ग्रोथ, उस बच्चे की डेवलपमेंट माँ लेती है अपने हाथ में, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। Along with the regular job, she has transformed the child, and that is why for all of us, our first coach, our first mentor, our first guru is always our mother. Am I right or not? So she was not just transactional in her approach, she was transformative। ऑफ कोर्स फादर भी ट्रांसफॉर्मेटिव होता है, फादर का ट्रांसफॉर्मेशन का कारण वो तरीका अलग होता है। तो फादर कहता है, माँ समझा के बताती है, फादर बोलता है बेटा गाल दे अपना जरा, लेफ्ट या राइट, बस वही ऑप्शन देता है वो। फादर, एंड दैट्स आल्सो वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव। एक चाटा खाया तो सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है एक बार। सो आई थिंक वी ऑल कैन प्ले दैट रोल वेयर we just don't do what we are supposed to do, we go a bit beyond, we add value। Can we be that mother for some time for somebody? Can we be that father for somebody for some time? Not in terms of the father and mother connection. I'm just saying from that perspective कि माँ जो है वो हमेशा बच्चे की भलाई चाहती है, उसके लिए वैल्यू ऐड करती है कि कैसे वो उसका फिजिकली वो स्ट्रांग हो जाए, कैसे वो बच्चा और अपने जब वो छोटा बच्चा होता है, इज ट्राइंग टू लर्न विद द हेल्प ऑफ वॉकर। तो अगर एक भाई है तो वो क्या करेगी जिसने उस बच्चे का ध्यान रखना है,
तो उस बच्चे को वॉकर में बिठा देगी और अपना बैठ जाएगी, क्योंकि उसका काम है ना वो। लेकिन माँ अगर रहेगी, उसी समय अगर माँ को रिप्लेस कर दो या वाई को रिप्लेस कर दो विद माँ, तो माँ क्या करेगी? माँ उस वॉकर में बच्चे को चलना सिखाएगी, शायद एक चीज रख देगी, एक एक खिलौना रख देगी उस बच्चे के आगे, और बच्चा उस खिलौने के पीछे जाएगा, तो माँ उस खिलौने को हल्का सरका देगी कि और थोड़ा सा और मेहनत कर, और सरका देगी तो और मेहनत कर, और उस चक्कर में बच्चा जो है वो चलना सीख लेता है। शी इज ट्रांसफॉर्मेटिव। सो हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जो सिर्फ कट टू कट काम करते हैं, जितना कहा गया उतना करते हैं, जितना कहा गया उतना देते हैं। बट देयर आर पीपल जो करते हैं और उसके साथ साथ वैल्यू ऐड भी करते हैं। आई थिंक दैट्स वेयर ट्रांसफॉर्मेशन इज। तो आइए इस दुनिया को अच्छा बनाते हैं। एंड अच्छा बनाने का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको, फॉर्म करते हैं इन अ बेटर वे। जब फॉर्म चेंज होता है तो उसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो लेट्स ट्रांसफॉर्म सम लाइव्स बाय value adding much more, or value adding, and by not just transacting. तो हम पगार तो सैलरी तो दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, इन तनख्वाह के साथ हम और क्या कर रहे हैं टीम के साथ? एंड that's a question. सो हैप्पी माइंड्स की शुरुआत ही इस विचार से हुई थी, जब मेरा पहला बैच हुआ था 1997 में। एंड आफ्टर द बैच गॉट ओवर, बैच का पैसा ले लिया, पैसा हजम हो गया, बैच जिसने किया वो सब खुश होकर चले गए। एंड आई सेड व्हाट टू डू, व्हाट मोर कैन आई डू? ये तो ट्रांजैक्शन हो गया, ये ट्रांजैक्शन के आगे क्या? एंड दैट्स वेयर हैप्पी माइंड्स वाज बोर्न। आई सेड लेट मी बी देयर, ये आए ना मेरे पास, मैं और क्या कर सकता हूँ? व्हाट मोर कैन आई डू, व्हाट मोर वैल्यू ऐड कैन आई डू? एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स टिल टुडे, वैल्यू एडिशन हैज बीन ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ सबको, पहले भी बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ, कि माई कमिटमेंट स्टार्ट्स व्हेन माई प्रोग्राम गेट्स ओवर। जब मेरा प्रोडक्ट खत्म हो जाता है तो मेरा कमिटमेंट चालू होता है आपके साथ। एंड दैट्स वे आई बीन लिविंग लाइफ, दैट्स वे आई बीन अप्रोचिंग माई लाइफ। आई एम जस्ट सेइंग, गेट अ फ्लेवर ऑफ दैट। तो सिर्फ हैप्पी माइंड्स आके सुनना नहीं है मुझे। अगर हैप्पी माइंड्स आते हो और सुनते हो, उसके पीछे का भाव तो समझो, क्यों करते होंगे ये, क्या कारण है? So there is value addition which has to be done. Because when I value add, you become better and I become better. जब माँ एक बच्चे को वैल्यू ऐड करती है, उसको ट्रांसफॉर्म करती है, द चाइल्ड बिकम्स बेटर, माँ बिकम्स बेटर एज अ मदर, एंड देन थर्ड थिंग ऑल्सो बिकम्स बेटर। क्योंकि दो इंसानों के साथ तीन चीजें होती हैं, एक तो वो इंसान जो कर रहा है, एक इंसान जिसको मिल रहा है, और तीसरा उन दोनों के बीच का रिश्ता। द थर्ड थिंग ऑल्सो बिकम्स बेटर। तो लड़का भी, बच्चा भी अच्छा हो रहा है, माँ भी अच्छा माँ बन रही है, और दोनों का रिश्ता भी अच्छा हो रहा है। सो व्हेन यू वैल्यू ऐड टू योर टीम मेंबर, तो आपका टीम मेंबर भी अच्छा हो रहा है, एंटरप्रेन्योर भी अच्छा हो रहा है वैल्यू ऐड करके, उसको भी समझ में आ रहा है और क्या कर सकते हैं, और दोनों का रिश्ता वो भी अच्छा हो रहा है। एबल टू कनेक्ट। कहाँ हो? मैं तो बहुत सारे कमेंट्स पढ़े नहीं। हम्म, हम्म, हेलो, 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 वेयर आर यू ऑल? इमोशनल कनेक्ट हो गया, अरे वाह! हाँ, सुन रहे हैं, अरे वाह! सो ऐसी कुछ मेरी दिल की बातें होती हैं जो आज पहली बार हैप्पी माइंड्स में आए, एंड सम ऑफ यू हैव बीन सेंडिंग द लिंक्स ऑफ हैप्पी माइंड्स, सो मेनी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ योर्स। तो कोई कोरिया से सुनता है मुझे, कोई निवासा से सुन रहा है मुझे, कोई हाँ, कोई साउथ से सुन रहा है, कोई नॉर्थ से सुन रहा है। सो आई एम जस्ट थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर स्प्रेडिंग द वर्ड। सो कीप ऑन स्प्रेडिंग द वर्ड फॉर हैप्पी माइंड्स। वैल्यू ऐड करो लोगों की लाइफ में। तो हर सैटरडे की सुबह कहीं ना कहीं किसी रूप में कोई बीज, कोई इनपुट जाएगा, और मालूम नहीं कब वो बीज, वो इनपुट किस रूप में बाहर आएगा। हम्म, सराज का वाला वड़ा बड़ा अच्छा था। थैंक यू ज्योति, थैंक यू। सुशील सेज, वाह सर, यू आर काइंड ऑफ मिक्सर ब्लेंडर। वैसा वो पूरी मिक्सी में क्या हो गया? पूरा विचारों का जूस निकल गया, या सब गोंदल हो गया है?
But I feel coming back to what I was sharing with all of you. हम सुबह से शाम तक हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सुबह शाम। चाहे हम काम के रूप में कर रहे हैं, चाहे हम दोस्तों के साथ हैं, कहीं भी हैं। आई एम जस्ट सेइंग बी कॉन्शियस दैट कैन यू वैल्यू एड, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव सो मेनी पीपल अराउंड मी जो मेरी लाइफ में किसी ना किसी रूप में वैल्यू ऐड करते हैं। तो अब आप देखो ना, एंड इफ यू कैन रिकॉग्नाइज these angels around you जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, so much you will see that uh, you would be in a position to value add in their lives also. तो ये एक ट्रांजैक्शन चलता रहता है, ट्रांजैक्शन के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उससे रिश्ता मजबूत होता है। और कभी भी आप वैल्यू ऐड करोगे, तीन लोगों का, तीन चीजों का भला होगा। जिसके लिए वैल्यू ऐड कर रहे हो वो अच्छा बनेगा, जो वैल्यू ऐड कर रहा है वो भी अच्छा बन जाता है, और उन दोनों का रिश्ता, थर्ड इज उन दोनों का रिश्ता, वो अच्छा बन जाता है। So keep on improving on these three things, and you will see the world is becoming a much better place. Hmm? So every HM is a peaceful satsang. Thank you so much. Asif says, Sir, Jabardast, how you linked Krishna, Bhagwan, and Arjun story with transformation is perfect. Thank you. Thank you, Asif. पीस जोन में चला गया सर। सुन रहे हैं, सो करो इस, and make a great week for yourself, this weekly shot of transforming lives and transforming yourself, it should continue, and इस weekly shot से कुछ action लो, ठीक है? And I'll see you next week with something much more beautiful. And मुझे अभी आप लोगों का कुछ कहानी सुननी है, तो next week मुझे कुछ कहानी सुनाओ ना अपनी अपनी। I'll have the mic on for some of you to share your stories. आप लोग कितना अच्छा अच्छा काम कर रहे हो, सब लोग सब बढ़िया काम कर रहे हो, कोई अच्छा जी रहा है, कोई अच्छा किसी ने अच्छा पॉइंट उठाया एचएम में। नेक्स्ट एचएम में ऐसा कुछ करते ना, where you kind of share your stories about what you have done, what you have implemented, what you felt great about Happy Minds, what was the turning point। बहुत से लोगों के लाइफ में Happy Minds has been a turning point। तो कहाँ पर टर्निंग पॉइंट हुआ, share with me। So, and those of you who want to come in for Family Happy Minds, you can come and you can be there. We would love to grow together as a big wonderful family. ठीक है? सर ऑफलाइन करते हैं। अरे है ना ऑफलाइन, ऑन 17th को है ना ऑफलाइन। ठीक है, चलो।